Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Dear student, I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, in the previous lecture, we had completed our unit number 5. Today, we are going to start unit number 6, which is of work, energy, and power. Today, we are going to discuss about the work. Now, what is the work? In general definition, we can simply say that the physical or mental effort to perform any task is called the work. Let's suppose if you apply the force on something, if we are pushing something, pulling something, we are doing work. But according to the physics, work is always associated with the two physical quantities that are force and displacement. When we are dealing with the work in the physics, for doing work, force must have to be applied and the displacement must be covered. If we are applying the force continuously on a body and the body is not moving, you are not doing work according to physics. Okay, my dear student, you must have to kept into your mind that in physics the work is only be done when the force is applied and the displacement is covered. If we apply the force, displacement not covered, the work is not be done. Now we can define the work as the product of the force and the distance moved in the direction of the force. Simply we can say that when we applying the force in the direction of the distance, then the work will be done. And it can be calculated by the formula W is equal to Fs. F is the force and S is the distance in the direction of the force. Let's take an example. Let's suppose a lady pushing a pram and lady pushing this pram along the direction of the distance. So the in that case maximum work will be done because the force and displacement is in the same direction. Take another example. Let's suppose a man pushing against the solid wall in that example. But the wall is stationary. It means that wall is not moving. So according to physics, the man is not doing work because he's continuously applying the force. But according to the physics, force must have to be applied and displacement must be covered. Okay, my dear student. So in that case, there will be the no work. In that case, maximum work. In that case, there will be the no work. Okay, dear student. We can take an example. Let's suppose आप क्या करते हैं अभी चेयर लें आप काफी देर तो चेयर को उठा के खड़े हुए हैं आप कहेंगे आप थक गए हैं बहुत ज्यादा आपने काम किया आपने फिजिकल एफर्ट तो की है लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू हैवंट डन वर्क आपने वर्क नहीं किया क्योंकि आपने फोर्स तो लगा रहे थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कवर्ड ठीक है माय डियर स्टूडेंट नाउ SI unit of the work is joule and work is a scalar quantity. Good, dear student. Now, what is the joule? How we can define a joule? We can define as the work done by the constant force of 1 Newton which moves an object through the distance of 1 meter in direction of the force. तो dear student, joule को हम define कर सकते हैं कि जब 1 न्यूटन फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाएं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे जो उसका वर्क है वो 1 जूल। ठीक है बेटा, समझ आ गई कि जब हम 1 न्यूटन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाएं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कवर करे तो हम कहेंगे जो वर्क है वो कितना हो गया बेटा 1 जूल हो गया। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। बेटा एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी किसी यूनिट को डिफाइन कर रहे होंगे तो उस यूनिट की डेफिनेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उन तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटी को आपने इन टर्म ऑफ द यूनिट ही डिफाइन करना है। ठीक है बेटा, जिस तरह हम यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं वर्क का यूनिट क्या जूल, तो बेटा जब यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं तो फोर्स का भी यूनिट इस्तेमाल होगा जो कि न्यूटन है और डिस्टेंस का भी यूनिट इस्तेमाल होगा जो कि मीटर है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। अगर तो फोर्स की डायरेक्शन जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है तो उस वक्त तो वर्क पॉजिटिव हो गया, मैक्सिमम हो गया इस केस के अंदर। अब बेटा नेगेटिव वर्क कब होगा कि व्हेन द वर्क डन
will be negative when the displacement is opposite to the direction of the force. Mean when we are applying the force against the displacement, then the work will be negative. Let's take an example. The work done by the frictional force when we push the book to a distance. Let's suppose a book is laying on the table. If we push against the table, that book, that friction force is creating the negative work. Take another example. The work done by the gravitational force when we are climbing on the tree. When we are climbing on the tree, we are doing work against the gravitational force. That's why this work will be negative. Look at this. Now, when the work will be zero, that's very important point. बेटा याद रखें कि वर्क जीरो दो कंडीशन में होगा. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास है कि जब फोर्स और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. ठीक है बेटा, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या एक दूसरे के साथ राइट एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, उस केस के अंदर वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्क डन विल बी जीरो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बेटा ये हमारे पास एग्जांपल है. अ मैन कैरिंग अ लोड वॉकिंग ईस्टवर्ड. बेटा इस केस के अंदर जो फोर्स एफ की वजह से वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं लग रही, बल्कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रही है. डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन है, इस तरफ बॉडी मूव कर रही है, फोर्स भी इस तरफ लगनी चाहिए. लेकिन ये जो फोर्स लग रही है ब्लॉक के ऊपर, बुक के ऊपर, ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट लग रही है. तो इस केस में वर्क डन नहीं होगा. ठीक है बेटा, याद रखे की पॉइंट्स है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या दूसरे के राइट एंगल है, तो बेटा इस केस के अंदर वर्क डन नहीं होगा. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो बेटा उस कंडीशन में भी वर्क डन जीरो होगा. जैसे पहले एग्जांपल हमने देखी, अ मैन इज पुशिंग द सॉलिड वॉल. बेटा अब ये दीवार को पुश तो कर रहा है लेकिन वॉल तो स्टेशनरी है, डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं कर रही, तो एस की वैल्यू तो जीरो होगी, तो वर्क भी जीरो हो गया. ठीक है बेटा, तो ये दो कंडीशंस है जिस कंडीशन में वर्क जीरो हो सकता है. ठीक है बेटा. ना अब देखते हैं वर्क को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज शो figure shows an object being lifted from a floor onto a tabletop which is 2 meters above the ground. If the lifting force F is 10 Newton, calculate the work done by the force on the object. अब वो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टेबल टॉप के ऊपर लिफ्ट करते हैं. टेबल टॉप है, ठीक है, जो कि ग्राउंड से 2 मीटर के फासले पर है. ये ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम टेबल के टॉप के ऊपर रखते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन है. तो वो कहता है बताएं कितना वर्क हुआ. सबसे पहले बेटा हम जो है गिवन लिख लेंगे लिफ्टिंग फोर्स, जो हमारे पास फोर्स गिवन है 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और डिस्टेंस जो मूव किया डायरेक्शन ऑफ फोर्स में. अब बेटा देखें जो डिस्टेंस कवर किया है ना डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है. अब बेटा डिस्टेंस भी अपवर्ड है, फोर्स भी अपवर्ड है. ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या डिस्टेंस फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है, तो जब वर्क पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा. अगर तो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं लग रहा, ऑपोजिट लग रहा है, तो वर्क नेगेटिव होगा. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन जीरो. आपको ये भी एमसीक्यूज आ सकता है. वो कहता है कि अ बॉडी इज लिफ्टिंग, लेट्स सपोज लिफ्टिंग अ बुक perpendicular to the displacement, or perpendicular to the we can say that, or simply we can say that a body is lifting in upward direction, in a perpendicular direction, and if their angle is 90 degree, then the work done will be zero. ठीक है बेटा, जेन में रख लें कि जब भी किसी भी बॉडी को आप इस तरह डिस्प्लेस करवा रहे हैं कि वो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बेटा वर्क डन विल बी जीरो. ठीक है बेटा. अब यहाँ पर देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखिए फोर्स जो लग रही है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे लग रही है, तो इसका मतलब है वर्क डन जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा. बेटा वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली वर्क इज अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बेटा, एफ की वैल्यू कितनी है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 2 मीटर, तो बेटा कितना हो गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 जाओ. ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया. तो बेटा इस तरह जो है हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं. Now next topic is energy. Now beta, what is the energy? Energy, the capacity of the body to do work.
मीन किसी भी बॉडी की जो काम करने की सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब बेटा वर्क इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है बेटा, याद रखें, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी बिकॉज विदाउट सप्लाइंग एनर्जी neither people nor machine can done work. When we are doing the work, it means that we are supplying energy. Without energy, we cannot do work. ठीक है बेटा, ये जेल में रखना है। ठीक है बेटा, जब ये कहते हैं वर्क का यूनिट भी जाउल है, ठीक है बेटा, जो हमारे पास एनर्जी, सॉरी, एनर्जी का यूनिट भी जाउल है, जो वर्क का यूनिट भी जाउल, एनर्जी का भी यूनिट जाउल। वाई? बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। व्हेन वी आर डूइंग द वर्क, इट मीन्स दैट वी आर सप्लाइंग एनर्जी। ठीक है बेटा, और एनर्जी भी हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? अब बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज केमिकल एनर्जी है, जिसके अंदर हमारे पास फ्यूल्स हैं सच एज ऑयल, वुड, कोल, इलेक्ट्रिक cells, food, and explosives. These are the different types of the chemical energies. Now, other type of energy, nuclear energy. Let's suppose we have atomic bombs, nuclear reactors, hydrogen bombs. The energy supplying is called, that is the nuclear energy. Now, next type is electric energy. The energy associated with the current in the electric drills, with the power tools, and all other electrical appliances. That is electric energy. Another one is internal energy. The energy possessed by the atom or molecules of the matter in a form of the kinetic energy or potential energy is called the internal energy. You had already might be discussed in the chemistry. When the gas molecule is moving randomly, they are possessing the internal energy. Now, and the last type is mechanical energy, very important one. There are the two types of the mechanical energies, kinetic energy and potential energy. Now we will discuss about the mechanical energy. As I told you, there are two types of the mechanical energy. First one is the kinetic energy and second one is the potential energy. Now first of all, we will discuss about the kinetic energy. What is the kinetic energy? The energy possessed by the body by the virtue of its motion. ये बेटा, कोई भी बॉडी जो अपनी मोशन की वजह से, अपनी मोशन की क्वालिटी की वजह से एनर्जी प्रोसेस करती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी इज मूविंग हैव अ काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल, we have a roller coaster. The motion of the roller coaster always possessing the kinetic energy. Let's suppose a car is moving, possessing the kinetic energy. Every body that is moving, every object that is moving which have an acceleration, that will have a kinetic energy. Now we can calculate the kinetic energy by this formula. Ek for kinetic will be equal to half mv square. ठीक है बेटा, kinetic energy को कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ mv स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि kinetic energy mass और velocity पर डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है mass और velocity में? कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का mass सेम है, लेकिन दोनों जो है डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो याद रखें बेटा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, अब मैथ पे डिपेंडेंट कैसे होगी कि हम सिमिलरली दो एक और कंडीशन ले लेते हैं। हम कहते हैं दो ऑब्जेक्ट है, अब उन दोनों ऑब्जेक्ट जो है अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का मैस डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिस ऑब्जेक्ट का मैस ग्रेटर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ हमें ये फार्मूला बता रहा है काइनेटिक एनर्जी मैस और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, कि अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उनके मैस को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, और मैस को कांस्टेंट रखकर डिफरेंट स्पीड से मूव करवा रहे हैं, जिसकी स्पीड ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ऑन द अदर हैंड अगर हमने क्या किया, स्पीड को कांस्टेंट रखा है, मैस डिफरेंट है, जिसका मैस ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। Now, what is the potential energy? Energy possessed by the body by the value of its position or the condition. Simply, the energy possessed by the body due to its position or the conditions called the potential energy. तो स्टूडेंट, जब किसी भी बॉडी की हम पोजीशन को चेंज करते हैं, हम कंडीशन को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी प्रोसेस होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। बेटा एक की पॉइंट ध्यान में रखें कि बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के लिए बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई तो बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी, मोशन प्रोड्यूस हो गई तो वो पोटेंशियल नहीं काइनेटिक हो जाएगी। ठीक है बेटा,
तो याद रखें, जब भी पोटेंशियल एनर्जी को डील करेंगे, ठीक है बेटा, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो दैट विल बिकम अ काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तभी तुम कहते हैं कि बॉडी की पोजीशन या कंडीशन चेंज करने में जो एनर्जी लगती है, बेटा पोजीशन चेंज करने, मूव करने में, बॉडी को लिफ्ट करने में, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी पोजीशन चेंज करने में, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैस पड़ा हुआ है, ये एम, ठीक है क्या बेटा, ये हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर मैस पड़ा हुआ है। अब मैं इस मैस को लिफ्ट करना चाहता हूँ सर्टन हाइट पे। लेट्स सपोज इसको मैंने मैस को इस हाइट पे लिफ्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो क्या लगी? एफ, ठीक है बेटा। मैंने इस मैस को इस सर्टन हाइट तक लिफ्ट कर दिया। अब ये जो हाइट है इसके अंदर, इसको हमने कह दिया एच, ठीक है बेटा। कि हमने कहा कि हमने एक मैस लिया है, उसको, वो ग्राउंड लेवल पे था, उसको हमने क्या किया? लिफ्ट किया अप टू सर्टेन हाइट एच के ऊपर। अब बेटा इस केस के अंदर जो वर्क कर रही है एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या कर रही है? एफ एच, बिकॉज जो फोर्स लग रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस लग रही है। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स भी लग रही है, वो क्या है? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इसके वेट की वजह से लग रही है, जो कि डब्ल्यू, जो कि किसके इक्वल है? एम जी के इक्वल है। और ये अपोजिंग फोर्स क्या कर रही है? ये अपोजिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में लेके आ रही है, यूनिफॉर्म पोजीशन पे लेके आ रही है, ठीक हो गया बेटा। और इसी अपोजिंग फोर्स की वजह से हम ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर ये जो मैस है इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है बेटा। अब जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमने सर्टेन हाइट पर लिफ्ट किया हुआ है, ये फोर्स क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एम जी, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। बेटा याद रखें, जब किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो उसके वेट के इक्वल होती है। किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट पे आप लिफ्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब भी फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है बेटा। और उसका फार्मूला क्या होता है? दैट इज एम जी, ठीक है बेटा, हर कंडीशन के अंदर। अब बेटा यहाँ पर जो वर्क हमने कैलकुलेट करना है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहे, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ एच है, ठीक है बेटा। एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू हमारे पास है ना, वर्क वैल्यू क्या थी? एफ एच। एफ की वैल्यू क्या आ गई? एम जी। एच की वैल्यू ये होगी एम जी एच, ठीक हो गया बेटा। मीन बॉडी को सर्टन हाइट पे एच पे लिफ्ट करने में जो वर्क हुआ है वो एम जी एच है। अब बेटा ये जो वर्क है ये किसके इक्वल होगा? दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया बेटा। दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने जिस ऑब्जेक्ट को, जिसका मास m है, इसको जो लिफ्ट किया है वो इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड किया है, ठीक है बेटा। और ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी बॉडी को आप लिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है बेटा। और हमें ये पता है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अगर हम वर्क की वैल्यू को निकाल लेंगे तो बेटा जो वर्क की वैल्यू है वही एनर्जी की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर मैस m को सर्टन हाइट h पे डिस्प्लेस करवाया, ठीक हो गया। इस हाइट के ऊपर हमने इसका वर्क निकाल लिया, कितना वर्क लगा हमें हाइट h तक डिस्प्लेस करने में, ठीक है बेटा। उस वर्क की वैल्यू को हमने कह दी, जो वर्क स्टोर हुआ है इस मैस के अंदर, ये वर्क स्टोर हुआ इन फॉर्म ऑफ दी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये एम जी एच, ये हमारे पास फार्मूला आ गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कनेटिक एनर्जी की क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? एम जी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सी फार्मूले हैं, आगे जाके आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकती हैं, ठीक हो गया, कि जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन दी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। नाउ बेटा दैट्स इज फॉर टुडेज लेक्चर। बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे बेटा आप जो है ग्रुप के अंदर इसको डिस्कस कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। ओके बेटा, दैट्स इज फॉर टुडे लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।